Hello students. Yesterday we have done with the process of microsporogenesis, that is the formation of microspores, or you can say the pollen grains. These are the pollen mother cells, or you can say the microspore mother cells, which will undergo into meiosis and will form a tetrad of pollen grains or the microspores. See, 1, 2, 3 and 4 means one pollen mother cell will give rise to 4 pollen grains. Pollen mother cells are undergoing into meiosis. That means the ploidy status of mother cell will be diploid and pollen grains will be haploid. Let me tell you the ploidy status of some structures like anthers. एंथर वो बॉडी है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे. सो इफ पोलन ग्रेन्स आर हैप्लॉइड देन ऑब्वियसली एंथर इज द बॉडी, एंथर विल बी डिप्लॉयड. अब एंथर के अंदर वो कौन सा स्ट्रक्चर है जहाँ पर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे? इनसाइड द एंथर इज माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन सैक. दिस इज ऑल्सो द बॉडी, सो दिस इज डिप्लॉयड. ठीक है. माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट है? लार्ज नंबर ऑफ पोलन मदर सेल्स. कहाँ से आई पोलन मदर सेल्स? हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या है? स्पोरोजीनियस टिश्यू है और उस टिश्यू की हर एक सेल कहलाती है पोलन मदर सेल. So obviously pollen mother cells are also diploid, and when pollen mother cells will undergo meiosis, then the pollen grains will be formed. That means pollen grains are haploid. This question comes in your exam, that write down the ploidy status of pollen grains, PMC, pollen sac or the anthers. That's why I am telling you. Fine. So our main topic is the pollen grains, and pollen grains represents male gametophyte. Fine. See, these are the 4 pollen grains, 1, 2, 3 and 4. All the 4 pollen grains are functional. Each pollen grain will germinate further. This time these pollen grains are present inside the anthers. अभी ये एंथर्स के ही अंदर है और एंथर के भी अंदर कहाँ? पोलन सेक्स के अंदर. अभी एंथर फूटा नहीं है, डेहिसेंस नहीं हुआ अभी एंथर्स का. अभी पोलन ग्रेन्स एंथर्स के ही अंदर हैं. इट मीन्स ईच पोलन ग्रेन इज अ पार्शली जर्मिनेटिंग माइक्रोस्पोर. अभी ये फुली जर्मिनेट नहीं हुआ है, fully develop अभी pollen grain नहीं हुआ है. So these pollen grains are the partially germinating microspores. Fine. And they are still in the anthers now. Fine. So we can define pollen grains from here, that pollen grains are what? Haploid, uninucleate. See, this is the nucleus, only one nucleus, one pollen grain, second pollen grain, third and fourth. Each pollen grain has one nucleus. So pollen grains are haploid, uninucleate, minute spores produced in larger number by meiosis in pollen mother cells. These are pollen grains, and size, shape, structure or color of the pollen grains vary from one species to the another species, but generally they are spherical in shape and 25 to 50 micrometer in diameter. If we study the structure of the pollen grains, we will find that pollen grains are having 2 layered wall which is called as sporoderm.
two-layer wall is called as sporoderm, outer layer is called as exine, and inner layer is called as intine. Outer layer is made up of an organic material called as sporopalanin. Intine or inner layer is made up of cellulose and pectin. Fine. There is very special thing about sporopalanin, that this organic material is resistant to temperature, acids, alkalis or any enzyme. Means this outer layer cannot be degraded by temperature, by acid, by alkali, or even no enzyme can degrade this wall just due to this sporopalanin, because it is very much resistant to all of these. So these pollen grains can be preserved in the form of fossils. Fossils आपको पता है अवशेष, मतलब अगर पोलन ग्रेन्स गिर भी जाएं ज़मीन में, कुछ सालों तक दबे भी रहें, तो भी हम उन्हें स्टडी कर सकते हैं कि ये किसके पोलन ग्रेन्स हैं, किस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स हैं. क्यों? क्योंकि ये वॉल कभी डिग्रेड नहीं होगी पोलन ग्रेन्स में. फाइन. इनर वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टीन. फाइन. See, this is the diagram of a germinating pollen grains. This is the outer wall. It is very beautiful. This outer wall, exine, which is made up of sporopalanin, and this is the inner wall, which is intine and made up of cellulose and pectin. And यहाँ पर एक space है. ये वो space है जहाँ पर sporopalanin present नहीं होगा. उसे कहते हैं जर्म पोर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जर्म पोर कहाँ प्रेजेंट होता है. जर्म पोर एक्साइन लेयर में प्रेजेंट होता है, और जहाँ जर्म पोर प्रेजेंट होगा वहाँ स्पोरोपेलेनिन नहीं होगी. और जर्म पोर क्यों डेवलप हुआ है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है. जर्म पोर के थ्रू ही ये जो पोलन ट्यूब है ये अराइज हुई है. एक्चुअली दिस पोलन ट्यूब इज द एक्सटेंशन ऑफ इंटाइन इनर वॉल, और ये एमर्ज कहाँ से हुई है, जर्म पोर से. अगर जर्म पोर नहीं होगा तो पोलन ट्यूब को निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा. फाइन. सो जर्म पोर्स हेल्प करते हैं किसमें, पोलन ट्यूब के एमर्ज होने में. फाइन. एंड दीज आर द टू मेल गैमेट्स. इससे पहले कि पोलन ग्रेन्स दो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करें, पोलन ग्रेन्स की अपने खुद की 2 सेल्स हैं. पोलन ग्रेन्स आर हैविंग 2 सेल्स, दैट इज वन इज द वेजिटेटिव सेल एंड द अदर इज द जनरेटिव सेल. मतलब जब पोलन ग्रेन्स एंथर्स के ही अंदर थे, अभी तो वो क्या थे, पार्शियली जर्मिनेटिंग माइक्रोस्पोर थे. धीरे 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 जब एंथर मैच्योर होगा, पोलन ग्रेन्स 2 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट हो जाएंगे. मतलब वन इज द वेजिटेटिव एंड अदर वन इज द जनरेटिव. वेजिटेटिव सेल कंटेन्स अबेंडेंट अमाउंट ऑफ द फूड, मीन्स ये नरिशमेंट का काम करता है, और अबेंडेंट साइटोप्लाज्म कंटेन करता है, बट शेप इसकी बहुत इर्रेगुलर होगी. वहीं पे जनरेटिव सेल की शेप जो होगी वो स्पिंडल होगी, और ये बहुत लाइट वेट होता है क्योंकि इसके अंदर फूड नहीं होगा. तो ये वेजिटेटिव सेल के ही साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहेगी जनरेटिव सेल. जनरेटिव सेल का फंक्शन ये है दैट इट विल गिव राइज टू 2 मेल गैमेट्स. आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, इस पोलन ट्यूब के अंदर ये 2 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं. ये 2 मेल गैमेट्स कहाँ से आए हैं, ये आए हैं जनरेटिव सेल से. दीज 2 मेल गैमेट्स. फाइन. नाउ देर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शेडिंग ऑफ द पोलन ग्रेन्स, कि पोलन ग्रेन्स कब शेड होते हैं. इन 60% फ्लावरिंग प्लांट्स पोलन ग्रेन्स शेड एट 2 सेल्ड स्टेज. In 40% they shed at 3 celled stage. What it means? 2 celled stage means only vegetative and generative, no male gametes. Fine. No male gametes are there. Only these two. Means 60% species में क्या होगा, ये एंथर bilobed 1 lobe and 2nd lobe and 4 chambers. This is theca. हर एक लोब में 2 चैम्बर हैं, 1 2 3 और 4. मतलब इन्हीं के अंदर क्या है, हमारे पोलन ग्रेन्स हैं. अभी जब वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बनी है तो ये पोलन ग्रेन्स इनके अंदर ही हैं.
60% स्पीशीज़ में तो यही होता है कि ये पोलन ग्रेन्स जो होंगे, शेडिंग मतलब होता है इनका बाहर जाना, ये पोलन ग्रेन्स कब रिलीज होंगे यहाँ पे, जब ये वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब ये यहाँ से रिलीज हो जाएंगे और ये लैंड करेंगे किस पर, स्टिग्मा पर। दिस इज स्टिग्मा, स्टिग्मा विल रिसीव द पोलन ग्रेन्स। जब ये पोलन ग्रेन्स पर जाएंगे, जब ये पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर पहुँचेंगे और स्टिग्मा जब इन्हें एक्सेप्ट करेगी, तब यहाँ से जनरेटिव सेल 2 मेल गैमिट्स में कन्वर्ट हो जाएगी बाय एमर्जिंग द पोलन ट्यूब। ये चलता है 60% स्पीशीज़ के केस में कि एंथर के ही अंदर ये 2 सेल्ड स्टेज बने थे, 3 सेल्ड नहीं, 2 सेल्ड स्टेज बने, उसके बाद पोलन ग्रेन्स यहाँ से शेड हुए मतलब बाहर निकले और तब स्टिग्मा पर लैंड किया। लेकिन 40% स्पीशीज़ में क्या होगा, पोलन ग्रेन्स जब सिर्फ 2 ही सेल होंगी इसके पास, ये तब बाहर नहीं निकलेंगे, बल्कि एंथर्स के ही अंदर रहकर ये वेजिटेटिव सेल बनेंगे, ये जनरेटिव सेल बनेंगे और जनरेटिव सेल फिर 2 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी। अदरवाइज क्या होता है, जब पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं स्टिग्मा पर और पोलन ट्यूब निकलती है, तब मेल गैमेट्स बनते हैं। लेकिन 40% स्पीशीज़ में क्या होता है, यहीं पर एंथर के ही अंदर वेजिटेटिव सेल भी बन जाएगी, जनरेटिव भी बन जाएगी और जनरेटिव सेल जर्मिनेट होकर 2 मेल गैमेट्स भी प्रोड्यूस कर देगी। फाइन, सो दिस वाज अबाउट the shading of pollen grains at 2-celled stage or at the 3-celled stage. 2-celled stage means the pollen grains will shed when they will be having vegetative cell and a generative cell. While in 40% angiosperms, what will happen? Generative cell inside the anther divide mitotically and will form 2 male gametes. This is 3-celled stage, very important question. Okay. See, this is the diagram. These 4 are pollen grains. Each pollen grain is a partially germinating microspore. Now we will take this pollen grain. This is the pollen grains. This is nucleus. It will divide mitotically. Size of the nucleus will get enlarged. These are the vacuoles. Vacuole. Nucleus will divide. After that, when this nucleus divide, it will form vegetative cell and the generative cell. You can see from the diagram the difference. Vegetative cell is very large in size, but generative cell is small because generative cell do not contain food material. However, vegetative cell contains abundant food material. The function of generative cell is it will give rise to 2 male gametes. Okay, generative cell is spindle in shape. However, vegetative cell is irregular in shape. Generative cell always floats in the cytoplasm of the vegetative cells. Okay. Now next is pollen allergy. कि पोलन ग्रेन्स से एलर्जी भी हो सकती है। पोलन ग्रेन्स एयर में रिलीज हो जाते हैं, है ना, वो हमारे नोस्ट्रल्स में, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर कर सकते हैं और हमें एलर्जी हो सकती है। ब्रोंकाइटिस मतलब हमारे जो ब्रोंकाई हैं वो डैमेज हो सकते हैं, इन्फ्लामेशन हो सकती है। एक एग्जाम्पल है कैरेट ग्रास का और पार्थीनियम का। ये एक वीड है। इंडिया में जब वीट को इंपोर्ट किया गया था, उसके साथ ही ये कैरेट ग्रास भी आई थी। धीरे 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 ये क्या हुआ, पूरी जगह पर फैलने लगी, लेकिन इससे क्या थी, पोलन एलर्जी थी। मतलब ये देखने में तो बहुत ब्यूटीफुल लगा कैरेट ग्रास, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा सीवियर पोलन एलर्जी हो गई थी। अब एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है कि नेम अ स्पीशीज़ which was imported along with the wheat in India as a contaminant. The answer is Parthenium. Parthenium is the botanical name and carrot grass is the common name. Very important question. Fine. Next is pollen products. We know that pollens contain abundant amount of nutrients. So obviously in Western countries even various pollen products have been formed, various tablets or the syrups have been formed, and they are used by athletes or even you can say the racing horses for increasing their performance. Next is the pollen viability. Viability means ability, मतलब पोलन ग्रेन्स की एबिलिटी। पोलन ग्रेन्स का काम क्या है, वो जर्मिनेट होंगे,
वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल निकलेंगे, जनरेटिव सेल से फिर मेल गैमिट प्रोड्यूस होंगे, पोलन ट्यूब निकलेगी और डिलीवरी हो जाएगी मेल गैमिट्स की। इनकी ये एबिलिटी जब तक रहती है उसे कहते हैं पोलन वायबिलिटी, मीन्स एबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन्स टू परफॉर्म इट्स फंक्शन ऑफ डिलीवरिंग द मेल गैमिट्स। जब तक इनकी एबिलिटी रहती है दैट इज द वायबिलिटी, एंड पोलन वायबिलिटी ऑलवेज वेरी फ्रॉम स्पीशीज टू other species. Like for example, in case of wheat and rice, the pollen viability is 30 minutes. मतलब जब pollen grains shed होंगे, जब वो निकलेंगे एंथर से, निकलने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स तक ही वाइबल रहेंगे। 30 मिनट्स के अंदर अंदर अगर वो स्टिग्मा पर लैंड कर जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन अगर पोलन ग्रेन्स निकल चुके हैं और 30 मिनट से ज़्यादा हो जाएंगे और वो स्टिग्मा पर लैंड नहीं करते हैं तो वो अपनी वायबिलिटी, अपनी पावर ऑफ जर्मिनेशन को खो देंगे। लेकिन कुछ एक स्पीशीज़ में, जैसे कि पोटैटो फैमिली है, सोलानीसे, लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, फलीदार पौधे, उनके अंदर वायबिलिटी कुछ मंथ तक भी चलती है। फाइन। और वायबिलिटी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंडीशंस पर भी डिपेंड करती है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि एक पोलन ग्रेन्स है, दिल्ली से निकला, वो दूसरी सिटी में जाएगा, क्या उसकी वायबिलिटी रहेगी, क्या वो जर्मिनेट करेगा? द आंसर इज़, हम ये लिखेंगे कि डिपेंड करता है कि पोलन जो है वो किस स्पीशीज़ का है, बिकॉज वायबिलिटी वेरीज फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़, इट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। फाइन। सेकेंडली आप लिख सकते हो कि आर्टिफिशियल इट इज़ पॉसिबल, मीन्स अगर आर्टिफिशियल मतलब जो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स किए जाते हैं उसमें क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन पर -196 डिग्री सेल्सियस पर, वो वाइएबल रहता है। तो आर्टिफिशियली इट इज़ पॉसिबल, बट नेचुरली इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीशीज, बिकॉज वायबिलिटी वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। फाइन। if a pollen is losing the viability, so there is a solution of this, that is pollen storage. We can store the pollen grains at liquid nitrogen temperature -196 degree Celsius. We can store the pollen grains and can use for the plant breeding programs.